This is the last lecture of this chapter, and this is one of the most important topic of not only this chapter but for entire syllabus of 12th class physics. बोर्ड एग्ज़ाम्स में कभी कभी 50-50 चलता है. 50-50 कैसे कि कभी साइक्लोट्रॉन आ जाता है, कभी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आ जाता है. तो जितना साइक्लोट्रॉन इम्पॉर्टेंट है उतना ही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इम्पॉर्टेंट, और दोनों ही बड़े इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए. सो वी आर स्टार्टिंग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. In electrical circuits, we uses ammeter to measure the value of current in the circuit. But there is some limitation of ammeter, because ammeter can measure large value of current. But if small current is flowing through the circuit, then we cannot measure that current with the help of ammeter. We need some other device to measure the current. The device which is having high sensitivity for the current. करंट के लिए जिसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, ऐसे डिवाइस को हम यूज़ करते हैं स्मॉल करंट को मेज़र करने के लिए. इन दैट केस वी यूजेस गैल्वेनोमीटर विच कैन मेज़र द करंट of the order of 10 to the power minus 3 ampere, which is milliampere. So we can measure the current of milliampere order with the help of galvanometer, and galvanometer is a bit smarter than ammeter. Ammeter can only measure the value of current, but galvanometer not only measures the value of a small current but it also indicates the direction of current. ये current के direction को भी बताता है. थोड़ा सा स्मार्ट है ये, ठीक है. तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है. गैल्वेनोमीटर मेजर करता है स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को, और ये करंट का डायरेक्शन भी बताता है. तो हम इसका डिस्क्रिप्शन सबसे पहले लिख लेते हैं. तो देखिए डिस्क्रिप्शन. It measures current of order of 10 to the power minus 3 ampere, and also shows direction of current. It also shows the direction of current. Now we will start with the application of moving coil galvanometer. Now what is the application, we will start with the principle of moving coil galvanometer. So the principle of moving coil galvanometer is, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत क्या होता है. सो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग लूप कैप्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो एक करंट कैरिंग लूप को जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते थे तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता था और रोटेट होना शुरू कर देता था. तो वो जो है वो इसका प्रिंसिपल है. तो अगर आपने वो लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप एक बार देख लीजिए. वैसे ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होगी उसके बिना भी, लेकिन फिर भी देख लीजिए, क्लियर ज़्यादा हो जाएगा. सो इसका प्रिंसिपल हम लिखते हैं. इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क experienced by current carrying loop kept in uniform magnetic field. चलिए, सो डिस्क्रिप्शन हमने कर लिया, प्रिंसिपल हमने कर लिया. नाउ वी विल हेड टुवर्ड्स construction part of this moving coil galvanometer. Construction. Now
देखिए कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे ही मैं लिखवाऊंगा अभी। तो देखिए ध्यान से कि एक हमारे पास कॉइल है, कॉइल में बहुत सारे टर्न्स हैं, ये कॉइल है हमारे पास और ये बहुत सारे टर्न्स हैं इसमें कॉइल में, ठीक है। इस कॉइल को आपने वाउंड किया हुआ है एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, ये सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है। ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है और ये जो कॉइल है, ये कॉइल सस्पेंड की गई है ऊपर से, ऊपर एक रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट से इनको लटका दिया गया है और ये जो सस्पेंड की है विद द हेल्प ऑफ इसको हम बोलते हैं क्या, फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। This is phosphor bronze strip and the lower part of the coil is connected with a, this is the lower part of the coil which is connected with a hair spring, this is hair spring, and this is what, this is current carrying coil, this is current carrying coil, and this current carrying coil is having the direction of current like this, which is in anti-clockwise direction, and this current carrying coil is kept between two concave pole magnets, concave pole magnets के बीच में ये current carrying coil रखी है, this is north pole, this is south pole, okay। This is the construction of this, simple construction of this moving coil galvanometer। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये तो इसका कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए, ये इसका फ्रंट व्यू हो गया। फ्रंट व्यू कैसा है कि दो कॉनकेव पोल मैग्नेट्स, कॉनकेव ये शेप हो गई, कॉनकेव पोल मैग्नेट्स हैं, उनके बीच में एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन को वैसे रखी है और उसके ऊपर हमने कॉइल वाउंड की है, फ्रेम बना दिया बिल्कुल वैसा। अगर आपको इसको इस स्ट्रक्चर को इमेजिन करना है तो आपने लॉकेट्स देखे होंगे कार में, वो जो टंगे रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, फ्रेम होता है और अंदर कुछ भगवान की फोटो होती है, वो जो वो है वो मूव करते रहते हैं, वो मूव कर जाता है, फ्रेम स्टेबल रहता है, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर ये है। तो इसको ये कैसा है अगर आपको इमेजिन करना है तो ये कॉनकेव पोल मैग्नेट्स हैं एंड दिस इज सिलेंड्रिकल कॉइल, ये कुछ इस तरह से है स्ट्रक्चर। और अगर इस, ये तो हो गया आप जो देख रहे हैं ये दिस इज फ्रंट व्यू, अगर टॉप व्यू देखना है तो टॉप व्यू कैसे, ये ऐसे कॉनकेव पोल मैग्नेट्स, इसको ऐसे कर दूं, ये कॉनकेव पोल मैग्नेट्स दिखाई दे रही है और सिलेंड्रिकल कॉइल का कौन सा पार्ट दिखाई देगा, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिखाई देगा। मतलब अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं तो टॉप व्यू कैसा बनेगा, ये आपको ऐसा दिखाई देगा और ये हो गया सिलेंड्रिकल कॉइल, ठीक है। तो देखिए इसकी वजह से होता क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सीधी फ्लो करती हैं, वो सीधी फ्लो करने की बजाय जब सेटअप ऐसा बना होता है और कॉनकेव पोल मैग्नेट्स के बीच में आप एक सर्कुलर, ये तो सर्कुलर ही हो गया, उसके लिए तो सर्कुलर ही हो गया, जब सर्कुलर पार्ट को आप रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सीधे जाने की बजाय इस कॉइल से इस तरह से पास होती हुई जाती हैं, ये इस तरह से पास होती हुई जाती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से पास होती हैं, हमेशा इस तरह से पास होती हैं, ठीक है। और 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं कोर के सरफेस के साथ, 90 डिग्री का एंगल बनता है मैग्नेटिक फील्ड का। अब इसका बेनिफिट क्या है वो हम बाद में समझेंगे, फिलहाल तो ये हम देखते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, दिस इज बी। चलिए अब कंस्ट्रक्शन पार्ट जैसे बनाया है एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, लिखूंगा, लिखने के बाद वापस से कर दूंगा कि हमने क्या किया, हमने एक कॉइल को लिया, कॉइल को हमने वाउंड किया किस पे, सॉफ्ट आयरन कोर पे, और कॉइल को हमने सस्पेंड किया फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप की हेल्प से, और जो लोअर पार्ट का है कॉइल का वो हेयर स्प्रिंग से कनेक्टेड है। और ये जो पार्ट है
हेयर स्प्रिंग से जो कनेक्टेड है, वो हेयर स्प्रिंग क्या करने वाली है, वो इस पे काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस करने वाली है। वो काउंटर टॉर्क क्या है अभी समझ लेंगे हम। और ये जो कॉइल है ये दो कॉनकेव पोल मैग्नेट्स के बीच में रखी है। मैं कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं अब और उसको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, तो देखते हैं। Now construction rectangular coil is wounded over cylindrical soft iron core। rectangular coil को wound किया है cylindrical soft iron core पे। coil is suspended with the help of phosphor bronze strip। phosphor bronze strip पे हमने सस्पेंड किया है कॉइल को। एंड लोअर पार्ट ऑफ कॉइल इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ हेयर स्प्रिंग। लोअर पार्ट जो है वो हेयर स्प्रिंग से कनेक्टेड है, विच विल प्रोड्यूस काउंटर टॉर्क। अब काउंटर टॉर्क क्या है उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। कॉइल इज केप्ट बिटवीन टू कॉनकेव पोल मैग्नेट्स। कॉनकेव पोल मैग्नेट्स के बीच में कॉइल रखी हुई है। अब देखिए आगे बात करते हैं, दैट इज वर्किंग, कि ये काम कैसे करेगा पूरा सेटअप। देखिए वर्किंग कैसे काम करेगी इसकी, या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसे काम करेगा। देखिए जब इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा कॉइल में, तो देखिए करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 90 डिग्री का। एंगल है 90 डिग्री का, तो जो इस पे फोर्स लगेगा दैट फोर्स विल बी इक्वल टू IBL sin थीटा। एंड थीटा इज 90 डिग्री, तो sin 90 हो जाएगा वहां 1। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, IBL। और इसका डायरेक्शन आप निकाल लेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। कैसे निकलेगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। ये जो आर्म है नीचे वाली, इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि जो डायरेक्शन करंट का है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है। और फोर्स का अगेन फॉर्मूला आप याद कर लें, तो IBL sin थीटा होता है। sin थीटा, थीटा 0 डिग्री, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल 0 डिग्री हुआ, मतलब लेंथ भी अगर उसको माने आप तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हुआ, sin 0 0 हो गया। ठीक है, फिर इस वाली आर्म की बात करें तो अगेन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, फोर्स लगेगी। इस वाली ब्रांच पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, तो इन दोनों आर्म्स पे फोर्स लगेगी, इस पे बाहर की तरफ, इस पे अंदर की तरफ, तो ये रोटेट करने लग जाएगा। रोटेट करने लग जाएगा तो टॉर्क, सॉरी इन दोनों पे टॉर्क लगेगी तो रोटेट करने लग जाएगा। तो वो जो टॉर्क है वो लिख लेते हैं कि टॉर्क कितनी होगी। तो देखिए व्हेन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग in coil, it will experience torque and starts rotating। ठीक है, अब टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, टॉर्क की वैल्यू कितनी लगती है, टॉर्क का फॉर्मूला आप पढ़ के आए हैं, क्या है, NIAB sin थीटा। अब देखिए NIAB sin थीटा। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इस सॉफ्ट आयरन कोर की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी जरूरत क्या है। आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में आपने ये लूप लिया था, इसमें भी हम लूप ही ले लेते तो क्या चला जाता। सॉफ्ट आयरन कोर की जरूरत क्या थी यहाँ पे, देखिए सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से होता है क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधे जाने की बजाय इसके एरिया से सॉफ्ट आयरन कोर से 90 डिग्री का एंगल बना के जाती हैं। मतलब हमेशा जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो जो टॉर्क sin 91 हो जाएगा, तो टॉर्क जो लगेगी वो क्या लगेगी, हमेशा मैक्सिमम टॉर्क लगेगी इस पे। तो आप कहोगे हाँ फिर कौन सी बड़ी बात है, बड़ी बात है। पिछले वाले लेक्चर में जाइए, सोचिए उसमें केसेस पढ़े थे हमने। आपको एक केस याद हो, जो फर्स्ट केस था वो था प्लेन अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो उस कंडीशन में जो टॉर्क लगती है वो मैक्सिमम लगती है उस पर, और जब प्लेन परपेंडिकुलर हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड के तो जो उस पर टॉर्क लगती है वो मिनिमम लगती है। मतलब टॉर्क कहीं मैक्सिमम लग रही है कहीं मिनिमम लग रही है, तो उसकी वजह से जो कॉइल है उसके रोटेशन स्पीड पे फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपने कॉइल लगा दी, सॉरी सॉफ्ट आयरन कोर लगा दी। सॉफ्ट आयरन कोर ने काम क्या किया कि सॉफ्ट आयरन कोर ने मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को, डायरेक्शन को बदल दिया। डायरेक्शन जब बदल गया तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो 90 डिग्री है, मतलब थीटा जो है वो 90 डिग्री हो गया।
तो साइन 90 क्या हो गया 1। तो उस कंडीशन में जो टॉर्क है वो हमेशा मैक्सिमम लगेगी, मतलब रोटेशन स्पीड जो है वो अब इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि कॉइल का अलाइनमेंट क्या है, वो किस इस बात पे डिपेंड करेगी कि करंट कितना है। बाकी सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट रहने वाली हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई? क्या क्लियर हुआ? तो ये टॉर्क की वैल्यू हो गई। अब देखिए इसने रोटेट करना शुरू कर दिया, कॉइल ने रोटेट करना जब शुरू किया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है और ये जो हेयर स्प्रिंग है इसमें ट्विस्ट आने लग जाए। अगर मैं इसको एक धागे से बांध के लटका दूं और इसको घुमाऊं तो धागे में ट्विस्ट आने लग जाएंगे। तो ये जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है इसमें ट्विस्ट आने लगे, ठीक है, ये घूमने लगा, ट्विस्ट आने लगे और इसमें भी ट्विस्ट आने लगे। ये ट्विस्ट करती जा रही है, लेकिन एक टाइम क्या होगा कि जब इसमें से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो जैसे ही करंट फ्लो होना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, ये जो स्ट्रिप है, सॉरी ये जो हेयर स्प्रिंग है, वो हेयर स्प्रिंग क्या करेगी, इसको, इस वाली कॉइल को वापस से अपनी पोजीशन पे ले आएगी, ठीक है। तो करंट फ्लो हुआ तो उसकी वजह से टॉर्क लगा इतना, ठीक है। करंट जब कम हुआ या बंद हुआ तो हेयर स्प्रिंग अब वापस से एक टॉर्क लगाएगी, वापस से टॉर्क लगाएगी, कौन सा, काउंटर टॉर्क। और ये काउंटर टॉर्क क्या काम करेगा, उस कॉइल की पोजीशन को वापस से रीस्टोर करने का काम कर रहा है, तो इसको हम रीस्टोरिंग टॉर्क भी कहते हैं। तो ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क इसमें लगेगा वो कितना होगा वो हम देखते हैं। देखिए रीस्टोरिंग टॉर्क, मैं एक चीज यहां लिख देता हूं, ड्यू टू रोटेशन ऑफ कॉइल हेयर स्प्रिंग will be twisted and it will produce counter torque ठीक है, काउंटर टॉर्क है रीस्टोरिंग टॉर्क। तो अब ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, मैंने इसको टॉर्क रीस्टोरिंग टीआर लिख दिया, उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए ये जो है ये डिपेंड करने वाला है किस पे, कि टॉर्क की वजह से कितना ये डिफ्लेक्ट हुई है, कितने ट्विस्ट आए हैं, और उन ट्विस्ट या डिफ्लेक्शन को शो किया जाता है किससे, थीटा से। थीटा से शो किए जाते हैं ट्विस्ट या डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये थीटा आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी हम हटाएंगे तो ये टी आर विल बी इक्वल टू हो गया के थीटा। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, के थीटा। अब देखिए एक चीज कि ये कॉइल तब तक रोटेट करती रहेगी जब तक ये हेयर स्प्रिंग इसको रोटेट करने दे रही है। जब हेयर स्प्रिंग का जो काउंटर टॉर्क है ये जब इसके इक्वल हो जाएगा तो ये कॉइल रोटेट करना बंद कर देगी, उस टाइम पे ये बंद कर देगी। इसका मतलब ये वाला टॉर्क इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, एन आई ए बी विल बी इक्वल टू के थीटा, सो थीटा विल बी इक्वल टू एन ए बी आई अपॉन के। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये वाली वैल्यू कंप्लीटली कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड बी मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय के, ये सब कांस्टेंट है। तो इसको हमने एक नया कांस्टेंट का नाम दे दिया, वो क्या है, थीटा विल बी इक्वल टू, इसको नाम दे दिया जी आई, वेयर जी क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और जी की वैल्यू क्या हो गई, एन ए बी अपॉन के, ये जी की वैल्यू आ गई। तो थीटा क्योंकि कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हटाया तो वापस से प्रोपोर्शनैलिटी लग गई, तो थीटा किस पे डिपेंड करने वाला है, करंट पे डिपेंड करने वाला है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है। डिस्क्रिप्शन सिंपल है, प्रिंसिपल भी सिंपल है, कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया होगा। कंस्ट्रक्शन में ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। सॉफ्ट आयरन कोर की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी कि ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को 90 डिग्री पे बनाए रखती है उसके एरिया के, तो इसकी वजह से जो टॉर्क लगने वाली होती है वो हमेशा मैक्सिमम लगती है। तो टॉर्क जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के एंगल पे अब डिपेंड नहीं करेगी,
किस पे डिपेंड करेगी? करंट पे डिपेंड करेगी। तो एक चीज यहां पे लिख लीजिए आप, यहां लिख देता हूं मैं, सॉफ्ट आयरन कोर। अब आप कहेंगे ये लिखनी कहां है, ये वाली बात आप हाइडर पे लिख लेना। सॉफ्ट आयरन कोर विल मेक द एंगल between A and B is equal to 90 degrees, so torque will all time maximum, टॉर्क हमेशा क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, कि करंट जब फ्लो होगा तो ये कितनी सेंसिटिविटी शो करता है, और वोल्टेज जब फ्लो होगा तो ये कितनी सेंसिटिविटी शो करता है। ये दोनों हम पढ़ेंगे अभी। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी को हम IS से रिप्रेजेंट करते हैं, और करंट सेंसिटिविटी बस ये शो करता है कि गैल्वेनोमीटर करंट के लिए कितना सेंसिटिव है। मतलब करंट को डिटेक्ट करके, और डिटेक्ट करके वो शो किस टर्म में करेगा? डिफ्लेक्शन के टर्म में शो करेगा। सो द नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस पर यूनिट करंट विल बी द करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या है? नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस या नंबर ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट करंट। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी इज how much a galvanometer shows deflection per unit current। ठीक है, सो IS विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन I, और हमने थीटा की वैल्यू लिखी थी। थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास? दैट वाज n, थीटा की वैल्यू हमारे पास थी NIAB अपॉन K इंटू I। ठीक है, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा NAB अपॉन K। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो करंट सेंसिटिविटी होती है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करने वाली है? वो उसके फिजिकल डायमेंशन पे, मतलब n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, A एरिया ऑफ द कॉइल हो गया, B मैग्नेटिक फील्ड। तो फिजिकल डायमेंशन और मैग्नेटिक फील्ड और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है उसके कांस्टेंट पे भी डिपेंड करेगा कि आप जो स्प्रिंग लगाई है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या? वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम VS से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये शो करता है वोल्टेज सेंसिटिविटी कि आपने किसी भी गैल्वेनोमीटर को कितना वोल्टेज दिया है, और उस वोल्टेज की वजह से कितने डिफ्लेक्शन या कितने ट्विस्ट आए हैं उस हेयर स्प्रिंग में। ठीक है, तो देखिए, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो VS विल बी इक्वल टू थीटा बाई V। अब V कैसे निकाल सकते हैं? आपके पास थीटा बाई I की वैल्यू आ गई, इसको आप R से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो थीटा अपॉन IR दैट मीन्स NAB अपॉन K। सो VS इज इक्वल टू K इंटू R, NAB अपॉन K इंटू R। दिस इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अब हम आगे पढ़ते हैं कि हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं वोल्ट मीटर और एमीटर में। तो देखिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है, बोर्ड में कई बार पूछ लिया जाता है। देखिए,
नेक्स्ट इज conversion of galvanometer into ammeter। सबसे पहले एमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए आसान भाषा में समझाऊंगा कि एमीटर और गैल्वेनोमीटर में पहले फर्क समझिए, तभी तो कन्वर्ट कर पाएंगे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में। एमीटर ज़्यादा करंट मेजर करता है और गैल्वेनोमीटर कम करंट मेजर करता है, लेकिन पोटेंशियल तो आपने दोनों के अक्रॉस सेम लगाया। अगर दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल लगाया है तो ऐसी क्या वजह है कि एमीटर ज़्यादा करंट मेजर करता है, मतलब अपने थ्रू ज़्यादा करंट को फ्लो होने देता है, और गैल्वेनोमीटर कम करंट को फ्लो होने देता है। तो रीज़न सिर्फ एक है कि जहाँ से करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है इसका मतलब है वहाँ का रेजिस्टेंस कम है, ठीक है, और जहाँ से कम करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब वहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसके मायने ये हैं दैट गैल्वेनोमीटर हैज़ मोर रेजिस्टेंस देन एमीटर, ठीक है। अब अगर गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम कम कर दें तो वो एमीटर बनाया जा सकता है। तो उसके रेजिस्टेंस को कम कैसे किया जा सकता है? किसी भी चीज़ के रेजिस्टेंस को कम करने का तरीका क्या है कि उसके अक्रॉस एक और रेजिस्टर लगा दिया जाए। लेकिन उसके अक्रॉस एक और रेजिस्टर किस में लगाएंगे? सीरीज में लगाएंगे या पैरेलल में लगाएंगे? तो सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड होते हैं तो वहाँ तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। पैरेलल में लगा दीजिए, वहाँ रेशियो में ऐड होते हैं तो वहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का। रेजिस्टेंस कम हो गया, गैल्वेनोमीटर एमीटर बन जाएगा। तो देखिए कैसे हम इसको करेंगे कि आपके पास ये कोई गैल्वेनोमीटर था जिसका गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस G था, ठीक है। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा था, यहाँ पे क्या किया, इसके पैरेलल हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया और इसके पैरेलल जो रेजिस्टेंस हमने लगाया उसको नाम दिया शंट रेजिस्टेंस, ये हो गया S, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी कि ये कितना होगा कि ये गैल्वेनोमीटर एमीटर बन जाए। तो देखिए यहाँ से करंट आया I, यहाँ पे करंट गया IG, यहाँ करंट गया I माइनस IG, ठीक है, और ये करंट यहाँ से यहाँ इस तरह से आया, यहाँ आया, ऐसे आया, फिर आगे चला गया। क्या समझ में आ गई आपको बात? अब देखिए क्या चीज हुई, इस वाले सर्किट में आप लगा दीजिए क्या, किरचॉफ लॉ। और किरचॉफ लॉ लगाने के लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहले तो आपको टर्मिनल्स डिसाइड करने, तो वो तो हो गए डिसाइड, पॉजिटिव नेगेटिव, और दूसरा आपको लेना पड़ेगा लूप। तो लूप हमने ले लिया ये वाला, आप कोई सा भी ले लो, आंसर तो सेम ही आना है। तो देखिए अब लूप आपने ले लिया, अब देखते हैं वैल्यू। तो पहले मैं यहाँ से ऐसे डिसाइड करता हूँ ABCD, तो फ्रॉम, नहीं पहले मैं लिख देता हूँ, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर we have to reduce the resistance of galvanometer by connecting a resistance in parallel, ठीक है। अब देखिए now by किरचॉफ लॉ, लूप लॉ, लूप लॉ, और लूप किस में लिया है, इन लूप या फ्रॉम लूप ABCDA, ठीक है। तो देखिए करंट यहां से यहां फ्लो हुआ, तो लूप लॉ अगर आपको याद हो तो शंट में S मतलब ये इसका रेजिस्टेंस है और करंट क्या हो गया I माइनस IG, ठीक है। और बाद वाले टर्मिनल को लिया जाता है तो ये हो गया माइनस। उसके बाद करंट यहाँ से फ्लो होकर यहाँ आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है गैल्वेनोमीटर का, हमने G ही मान लिया और करंट फ्लो हो रहा है IG, और बाद वाला टर्मिनल प्लस इज इक्वल टू 0, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। इस सर्किट के अक्रॉस यहाँ पे तो कोई वोल्ट मतलब सप्लाई नहीं लगी है, तो ये हो गया 0। अब क्या किया आपने, इसको उधर ले जाइए, तो GIG इज इक्वल टू SI माइनस IG, और शंट की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये हो गया GIG अपॉन I माइनस IG, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ गई शंट की।
शंट इतना लगा देंगे तो आपका गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब ये तो कन्वर्जन हो गया एमीटर का, अब वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं फटाफट। देखिए भाई, वोल्ट मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको वोल्ट मीटर की खासियत समझनी पड़ेगी। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है सर्किट के। ठीक है, मतलब कि आपके पास एक ये लोड है और ये वोल्ट मीटर है, ऐसे कनेक्ट किया जाएगा। अब करंट अगर यहाँ से आ रहा है तो करंट के पास दो रास्ते होते हैं जाने के, एक तो वो यहाँ जाए, दूसरा यहाँ जाए। तो अगर उसको जाना तो लोड से ही है, करंट तो हमें लोड से फ्लो करवाना है, वोल्ट मीटर को करंट थोड़ा ना देना है। हम वोल्ट मीटर तो सिर्फ मेजरमेंट के लिए रखा हुआ है। तो वोल्ट मीटर को के पास करंट ना जाए तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं ताकि वोल्ट मीटर के थ्रू करंट फ्लो ना हो, बहुत ज्यादा करंट फ्लो ना हो। मैक्सिमम करंट कहां से फ्लो हो, लोड के थ्रू फ्लो हो। ठीक है, तो वोल्ट मीटर के साथ खासियत यह है कि वोल्ट मीटर हमेशा हमेशा उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको अगर बढ़ा दिया जाए तो वोल्ट मीटर वो बन जाएगा। अब पिछली बार याद कीजिए जब आपने रेजिस्टेंस कम किया था गैल्वेनोमीटर का, तो आपने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल आपने एक रेजिस्टेंस लगाया था कम करने के लिए। अब अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो एक रेजिस्टेंस कहाँ लगा दूं मैं, सीरीज में लगा देते हैं। सीरीज में लग जाएगा तो हमारे पास हमारा गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले तो थ्योरी लिख लेंगे इसकी। ठीक है, तो देखिए वोल्ट मीटर हैव very high resistance to convert galvanometer into voltmeter. We have to connect resistance in series with galvanometer। ठीक है, चलिए तो आपके पास ये है गैल्वेनोमीटर, ये आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, इसको कनेक्ट कर दिया एक वोल्टेज सप्लाई से। अब देखिए अगेन यहाँ पे आप किरचॉफ लॉ लगाने वाले हैं, तो करंट फ्लो हो रहा है IG, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और ये किरचॉफ लॉ लगा दीजिए फटाफट इसमें। तो देखिए किरचॉफ लॉ लगाऊंगा तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ सीधे सीधे V पॉजिटिव। चलिए यहाँ पहुंचे तो माइनस का GIG, ठीक है, यहाँ पहुंचे तो माइनस का RIG इजिकल टू 0। क्या निकालना है आपको, R निकालना है। ठीक है, तो देखिए V माइनस GIG इजिकल टू RIG, तो R इजिकल टू V माइनस GIG अपॉन IG। This will be the value of resistance to make a galvanometer वोल्ट मीटर। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए आपने रेजिस्टेंस लगा दिया।